So first of all, I'm sorry for the last lecture. Actually, I missed it due to some confusion. I had exam and after that I forgot to take a few lectures. So I'm sorry for that. And let's continue for today's lecture. So in last part we have studied a different, starting with see how we detect the body in different directions. Then we studied about your this, anatomy related to skeletal system. Then we studied skeletal system, and other than that, we studied cell tissue and your digestive system, respiratory, cardiac. All these things we have studied. Okay. Now we are going to study another system that is your excretory system. Okay. So after digestion, what is important to the body and how is that waste is excreted out of the body, that is going to be fully covered in excretory system. If I talk about excretory system, it is consists of different organs. If I talk about a pair of kidney is involved, a pair of ureters are involved, urinary bladder is there, and urethra is there. So these are the different, organs which are involved into the excretory system. Okay, so you can see this is a diagram where you can see the whatever rib cage के back side में it is placed between somewhere. Okay, and kidney is there, and both kidneys, right and left, they have the common collecting duct. Okay, all the secretions and kidney nephrons are there. Those nephrons filter out, and whatever the material has to be excreted, they come out through this collecting duct, and that collecting duct excrete whatever the material they collected from there. That schedule kindly comes and all the things will be stored into your with the help of urine into your bladder and with the help of urine. Guys, I'm requesting again kindly see what things kindly mute yourself. Okay. So this is how. Okay. So excretory system, the urethra are the tubules that carry the urine from the pelvis of the kidney to the urinary bladder and ureters. These are the ureters. Okay, so ureters are basically they whatever the urine has to be collected from the pelvis of your this kidney का जो लोअर रीजन होता है वहां से जो कलेक्शन आ रहा है किडनी से वहां से लेकर के वो यूरिनरी ब्लैडर को लाता है वो यूरेटर्स है ओके एंड यूरेथ्रा इज द ट्यूब्यूल that carries the urine from urinary bladder to outside the body okay and urinary bladder is a temporary storage urine until it's releases from the body okay so one drop तो हम रिलीज नहीं करेंगे once it reaches to a maximum capacity urethra fill जब होने लगता है तब बॉडी को सिग्नल जाता है फिर वो जो है आपको सिग्नल देता है यू फील लाइक यूरिनेटिंग आप जाते हैं वहां पे यूरिनेट करते हैं ओके so this is how and again this whole process is based on your signal transduction mechanism okay so outer end of urethra is controlled by the circulatory muscles called sphincter. Okay, so ये circulatory muscles जो होती है under the willpower control होता है, but in certain old ages or disease conditions, severe disease condition में क्या होता है कि patient जो है कंट्रोल नहीं कर पाता और यूरिन लीक कर जाता है तो जैसे आपको बहुत ज्यादा फ्राइटेंड है फियर्ड है ठीक है उन कंडीशंस में भी ये हो जाता है सर्टेन आई कैन से साइकोलॉजिकल कंडीशंस चाइल्ड के केसेस में भी हो जाता है एंड ओल्ड एज केसेस में भी हो जाता है विद टाइम वी लर्न टू control these muscles okay so each kidney is composed of three sections cortex medulla and pelvis and kidneys are surrounded by adipose tissue and capsula adiposa okay so along with this I just going into the depth of this uh, I can say depth of your respiratory system. Okay, I just want to tell you this thing. See what is the basic,
we have studied ki this is your anatomy and what all organs have been involved into your respiratory system. Okay, but what is the basic function I told you? The excretion. Excretion के अलावा क्या other you feel कि what is the other this benefits of or the functions of respiratory system? Any idea? Anyone can tell me? Ma'am, please repeat the question again. See, I told you the excretory system is basically excreting out the waste material from the body. Other than this, what is the other functions of, if I talk about what is the other functions of excretory system? Anyone can tell me, see, metabolic waste को body से remove करना is a one major function. Other than this, anyone can tell me what is the other function? No idea. Okay, I'll tell you this. ओके कि आपका एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट तो हो ही रहा है बट जब एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उस टाइम पे भी बॉडी को जिन मिनरल्स की जरूरत है जिन विटामिन की जरूरत है जिन सॉल्ट की जरूरत है वो रीअब्सॉर्ब भी करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओके तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स विल टेक प्लेस सेकेंड थिंग नॉट ओनली द वेस्ट ऑल्सो हीट का भी जो है ना बॉडी का जो हीट एक्सेस हीट है उसका भी बॉडी एलिमिनेशन करती है through this process. So after excess heat भी जो भी है excretion also removes the excess heat from the body, okay, which thus helps to maintain the constant body temperature, okay. तो आपका जो भी excess heat है उसको आप कैसे remove कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू remove कर रहे हैं, okay. और हीमोस्टैसिस जो आपका हीमोस्टैसिस में इसकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना वो करता है ठीक है तो दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच बेसिकली आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम मेंटेन करता है ठीक है यूरिया एंड एक्सेस मिनरल सॉल्ट का एक्सक्रीशन जो है वो किडनी करता है और स्किन के थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट सॉरी ठीक है और आपका अगेन एक्सेस वाटर का एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन स्वेट और expired air के फॉर्म में होता है ठीक है so these are the few ways which we can or you can write it down okay कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हम एक्सक्रीट करते हैं कि लंग्स करता है बेसिकली थ्रू एक्सलेशन मतलब कि एक्सेल करके बॉडी से हम थ्रू नॉस्ट्रल इसको रिलीज करके करते हैं ठीक है then next your excretory product is urea and excess mineral salt जो कि आपका किडनी और स्किन करते हैं किडनी आपका यूरिन फॉर्मेशन में रिलीज करते हैं स्किन आपका स्वेट फॉर्म में रिलीज करती है ओके नेक्स्ट इज एक्सेस वाटर को किडनी और स्किन और आपका जो है लंग्स रिलीज करते हैं किडनी जो है आपका यूरिन के फॉर्मेशन में रिलीज करेगा स्किन जो है स्वेट फॉर्मेशन में एंड लंग्स जो है वो एक्सपायर्ड एयर के फॉर्मेशन में नेक्स्ट इज योर बाइल पिगमेंट कंटेन्स आयरन ब्रेकडाउन ऑफ आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ये जो लिवर रिलीज करता है ये कैसे करता है तो आपके स्टूल के साथ फीसेस के साथ ये रिलीज होता है ओके so these are the different मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस में बनते हैं ओके अब स्किन से हमारा क्या क्या स्वेट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है तो यूरिया है एक्सेस वाटर एक्सेस सॉल्ट इन फॉर्म ऑफ स्वेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेस वाटर जो हम लंग से रिलीज कर रहे हैं एक्सपिरेशन में जब हम एयर को रिलीज करते हैं ओके बाइल पिगमेंट जो है वो फीसेस के थ्रू हो रहा है यूरिया एक्सेस वाटर एंड एक्सेस सॉल्ट जो हम यूरिन के थ्रू तो दिस इज सिंपली what we release it. Okay. So clear guys?
नाउ कमिंग टू द एनाटॉमी की बेसिक आपको पता चल गया कि किडनी का फंक्शन क्या है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है. नाउ कमिंग टू एनाटॉमी. तो किडनी का मैंने बताया कि किडनी कंपोज ऑफ थ्री सेक्शन. कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है एंड रीनल पैल्विस होता है. ठीक है. किडनी आर सराउंडेड बाय एडिपोज टिश्यू जो कि आपका कैप्सुला एडिपोजा होता है. ओके. क्वेश्चन लाइक एक्सपेक्ट देता है. ठीक है. अब किडनी का फंक्शन क्या होता है. बेसिकली आपने सुना होगा कि बहुत सारे किडनी फेल हो गया. किडनी फेलियर में क्या होता है, आपका जो डिजीज कंडीशन होता है वो तो या तो एक्यूट किडनी डिजीज हो गया या क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है. एक्यूट किडनी डिजीज मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का जो डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज लॉन्ग ड्यूरेशन का जो डिजीज और किडनी फेलियर होता है एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. एंड स्टेज रीनल डिजीज में हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, डायलिसिस. क्यों? क्योंकि वो किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना ना, लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन. वो वाटर का भी फिल्ट्रेशन करेगा, वो आपका ब्लड का भी फिल्ट्रेशन करेगा. तो जब किडनी फेल होता है या किडनी फंक्शनल नहीं होता आपका, जब एंड स्टेज में अपने पहुंच जाता है तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा कॉर्टेक्स लेवल पे. तो इन दैट सिनेरियो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, हम डायलिसिस के लिए पेशेंट को भेजते हैं. ओके. So, am I audible to you people now? Yes, ma'am, you're audible. So, एंड मेड्यूला का क्या फंक्शन होगा, तो कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या होगा, फिल्ट्रेशन पार्ट है. बेसिकली आपका ब्लड को फिल्टर करना है या फिर जो है बेसिकली जितना भी फिल्ट्रेशन होगा यूजुअली वो आपका कॉर्टेक्स लेवल पे होगा. ठीक है. आपका मेड्यूला क्या करेगा, कंटेन्स द कलेक्टिंग डक्ट which carries away the filtered substance to the pelvis. ओके. तो जो भी filtered substance है उसको वो रिमूव करेगा कहाँ पे, pelvis की तरफ. ओके. जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है बॉडी से उसको हम रिमूव करके कहाँ ले जाएंगे, pelvis ले जाएंगे. Pelvis is a hollow cavity where the urine accumulates and drains into the urethra. तो आपका जो pelvis से क्या होगा कि hollow cavity होगी उधर. pelvis अगर आप anatomically देखेंगे, अगर मैंने दिखाया होगा पहले जो तो देखते होंगे कि बैक साइड में दो होल्स होती है, आगे पूरा बीच में इन बिटवीन हॉलो स्पेस होगा. ओके. तो वो स्पेस क्यों होता है, हॉलो कैविटी क्यों होती है, बेसिकली हॉलो कैविटी इसीलिए होते हैं. आप ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड बैक साइड में बोन्स है एंड इन बिटवीन ये हॉलो स्पेस है. इस हॉलो स्पेस में आपका यूरेथ्रा होता है. इन केस ऑफ फीमेल्स में तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इधर प्लेस्ड होता है जिधर वो मदर का वूम भी यू कैन सी जहाँ पे वो कंसीव करते हैं. तो दिस हॉलो स्पेस इज बेसिकली इन फीमेल केसेस आप देखेंगे कि पेल्विक गर्डल और जो पेल्विक बोन होती है वो वाइडर होती है. वाइड इज वाइडर क्योंकि उधर जो है उन्हें कंसीव करने के लिए पूरा स्पेस रहता है ताकि जो पेल्विक बोन सारा बर्डन बेयर अप करती है. ठीक है. एंड स्पेस भी होता है प्रेगनेंसी के लिए. ओके. तो ना दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल डायग्राम. क्रॉस सेक्शनल डायग्राम मतलब कि किसी भी एनाटॉमिकल ऑर्गन को हमने बीच में से काटा और उसको फिर हम स्टडी करें. ओके. तो आप देख रहे होंगे कि ब्लड विद वेस्ट एक साइड से एंड ब्लड विदाउट वेस्ट. So there is a two, I can say, tubules are there. One contains the blood with waste that is eliminating from the kidney and going towards the urethra. Another is containing with bringing the substance, the blood with uh, without waste. Okay. So आपका filtered substance है जो body में जाएगा. Okay. So this is how your urine formation takes place and after ureter के through you can see कि जो है ureter के through वो downside move कर रहा है. Okay. And ये आपका cortex और medulla है. Okay. And in this you have in medulla you have nephron. Okay. So the essential part of urinary system is your kidney and nephrons are the structural and functional unit. Okay, जो कि filtration करता है kidney में. Okay, normal kidney contains 8 lakh to 1 million nephrons. Okay, nephrons, the renal corpus is filtering the component and adds consistence to the glomerulus and Bowman's capsule. तो आपका जो रीनल कॉप्सल है ये फिल्टरिंग कंपोनेंट होता है
एंड आपका जो ग्लोमेरुलस वुमन कैप्सूल है उसमें हमेशा कंटेनर जो है उसमें फॉर्मेशन होकर एडअप होता जाएगा, ठीक है। एंड रीनल ट्यूब्यूल इज स्पेशलाइज्ड फॉर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन एंड कंसिस्टेंट टू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होगा, इसके बाद से आपका जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, फिर लूप्स ऑफ हेनले होता है, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल होता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है। तो इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन और डिफरेंट प्रेशर लेवल पे जो है ये फंक्शनैलिटी चलती रहती है। लेट मी शो यू। ये है आपका बेसिक जो है रीनल सर्कुलेटरी आपका ये होता है, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम, ओके। आप यहाँ पे बीच में देखेंगे, यहाँ पे सेंटर में ये आपका जो है बेसिकली ग्लोमेरुलस कैप्सूल और है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के जो है ग्लोमेरुलस के अलावा उसी को हम जो ग्लोमेरुल को वुमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ से जब एग्जिट करता है तो आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फिर असेंडिंग लिम्ब आएगा और ऑफ द हेनले लूप होगा, इसी को लूप्स ऑफ हेनले भी कहते हैं। फिर ये ऊपर जाएगा तो डिसेंडिंग हेनले लूप होगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो असेंडिंग हेनले लूप होता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो डिसेंडिंग हेनले लूप होगा, ठीक है। फिर एक्यूरेट आर्टरीज होंगी जो इनको कवर अप करेंगी, ठीक है। और फिर आपका जो है यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे आपके टिब्यूल्स होंगे, ये रहा जो कलेक्टिंग टिब्यूल्स है जो कलेक्ट करके सारा जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और उसके बाद से ये येलो कलर का डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद से आपका जो है कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट पार्शियल प्रेशर से आपका सारा जो है सबसे वो आपका कलेक्ट होता है। और ये जो सर्कुलेटिंग पर्पल कलर की जो इसके अराउंड जो आपकी आई कैन से जो कैपिलरीज है, ये वहां से रीअब्जॉर्प्शन करके और बॉडी में सर्कुलेशन में सारे सब्सटेंस लाते हैं। यूजुअली आपको देखिए किडनी का जो है ये कॉर्टेक्स है, आउटर पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स, एंड जो आपका आई कैन से फ्लावर शेप और पेटल शेप जो स्ट्रक्चर है उसको मेडुला कहते हैं। I'll show you a better question. Wait a minute. In this picture, you can see, how this whole anatomy is. तो आप देखेंगे कि रीनल आर्टरी है एंड रीनल वेन है। आर्टरीज इज यूजुअली रेड इन कलर। आप जब भी एनाटमी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जस्ट कीप सर्टेन कलर पेंसिल, ओके, अच्छी कैमल की पेंसिल रखिएगा। जब भी आर्टरी को ड्रॉ करना है यू हैव टू यूज रेड कलर, जब भी आपको वेन को ड्रॉ करना है यू हैव टू यूज योर ब्लू कलर, ओके। और जब आपको किसी नर्व को ड्रॉ करना है यू हैव टू यूज येलो कलर। दीज आर द कलर कोड्स फॉर मैचिंग, ओके। उसके अलावा आप देखेंगे कि इफ यू सी इनटू द क्रॉस सेक्शनल डायग्राम, सबका रीनल पेल्विस एरिया है एंड जहां पे भी मेड्यूला का एंड हो रहा है वो एरिया जो बॉटम ऑफ द मेड्यूला है, दैट इज नोन एज योर कैलिक्स। एंड मेड्यूला इज अ फ्लावर शेप स्ट्रक्चर, यू कैन सी कि आपको फ्लावर शेप डार्क स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपका कैबेज और फ्लावर फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका मेडुला है। एंड आउटर पार्ट ऑफ दैट मेडुला इज नोन एज योर कॉर्टेक्स, ओके। क्लियर?
Male capsules is composed of glomerulus and Bowman's capsule and the afferent arteriole and efferent arteriole. Efferent arteriole मतलब जो arteries enter कर रहे हैं उनको हम efferent arterioles कहते हैं and जो exit करते हैं उनको हम efferent arterioles कहते हैं. Okay. तो अब इनका functionalities उसी के according है. Let me show you a nephron structure. You can see this diagram. Okay. Your Bowman's capsule is there. In between Bowman's capsule, you can see the red colors arterioles are present. Okay. One that is coming inside, entering into that Bowman's capsule is wider, and that is known as the uh, efferent arteriole. Efferent मतलब coming. Efferent is your exit. Okay. So exit arteriole or going out from that Bowman's capsule is the efferent arteriole. Okay. And then from there we have your proximal convoluted tubules. Then you can see the capillary network is always there. Then we have ascending, then transverse, and then descending loops of Henle. Then at the end of loops of Henle we have distal convoluted tubule. Why it is distal? Because it is away from your Bowman's capsule. So as I told you in starting, whenever any anatomy is away from the original anatomy or the original thing, then we mark it as distal. So it is away from your Bowman's capsule. That's why it is known as distal convoluted tubule. And at the end of that, we have collecting duct. Okay. So this is a in general anatomy of your I can say nephrons. Okay, and in this whole process of urine filtration and reabsorption will take place over in this area. Okay, on the basis of different partial pressures. Okay, so in urine formation, I will tell you how this thing will take place. Okay? What is the pressure and in which region what is going to be get absorbed. So, So the glomerulus is composed of the capillary tuft and receives the blood from the afferent arteriole. The tuft is surrounded by Bowman's capsule and consisting of the visceral inner and parietal outer layer. Between two layers is a space where the primary urine is produced. Okay, the parietal and outer layer is composed of the simple squamous epithelium. Okay, so the visceral layer is composed of podocytes and there is ultrafiltration of the blood plasma. The filtration barrier is endothelium, podocyte, and their basement membrane. Okay, so these are the if I talk about filtration barriers, there are different layers
and different formations are there. Okay, so if I dissect any renal corpuscle, okay, and different layers, in that we will see, okay, कि कैसे basement membrane होता है, उसके ऊपर squamous cells है, फिर ये histological appearance है, you can see, okay. तो हम माइक्रोस्कोपिक जब स्टडी करेंगे स्क्रीन करके यानी टिश्यू स्ट्रक्चर का, तो हम ये सारी लेयर्स का देखेंगे, ओके. So glomerular blood pressure provides driving force of the blood plasma to be filtered into the space made by Bowman's capsule. The acid base and the blood osmolarity and plasma composition and fluid volume of the primary urine is 125 ml per urine per minute. That is 1.5 to 2 liters per day by an adult human. इतना यूरिन हमारा पर डे एक एवरेज रेशियो में हो सकता है, ठीक है. तो यूजुअली ज्यादा ही होता है, पर जनरल एक इतना बता रहे हैं, ठीक है. दिस इज योर रीनल कॉप्सूल. ओके, बस रीनल कॉप्सूल को मैंने बोला कि जब हिस्टोलॉजिकल जब टिश्यू स्टडी करेंगे तो यू कैन सी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ग्लोमेरुलस है, बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है. बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर रीनल कॉप्सूल बनाता है, ठीक है. यहाँ पे आपकी एफरेंट आर्टेरियोल्स है, यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ठीक है. और यहाँ पे मैक्युलर डेंसा सेल्स होते हैं जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल का पार्ट होते हैं, ठीक है. और मेसेंजियन सेल्स होती है, ठीक है. और जस्टा ग्लैमुलर सेल्स होती है. तो ये सारी सेल्स मिलकर के आपका डिफरेंट रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ओके. Justa glomerulus apparatus is consisting of the macula densa and attached to the afferent arteriole. The cells of justa glomerulus apparatus affect the blood pressure by renal production. तो आपका जो रीनल एंजियोटेंसिन और ये होता है ट्रैक का जो सिस्टम होता है हमारा, रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है आपका, वो आपका ब्लड प्रेशर की केस में आप देखते होंगे काफी केसेस में हम क्या बोलते हैं कि किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है या किडनी से मेंटेन्ड होता है, तो हम सर्टेन केसेस में हम डायूरेटिक भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्योलॉजी. तो व्हाई इट इज सो, आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ब्लड प्रेशर, ओके. तो ब्लड प्रेशर आपका जो है रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और वहां से फिर जो है आपका प्रेशर फॉर्मेशन और फिल्ट्रेशन स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेनेशन में और सर्कुलेशन में इफेक्ट आता है, ओके. तो गिव मी टू. Each kidney supplied by a renal artery. Artery arises from aorta. It divided into 2 to 3 branches before entering into the renal cortex. Okay, one branch supplies the upper portion of the kidney, other the middle portion, and last one is the lower portion. So 2 to 3 branches में divide हो रहा है, और जिन जिन branches में divide हो रहा है इसके accordingly circulation भी करते हैं. Further, these branches are divided into the interlobular arteries, which give rise to the afferent arterioles, and blood flow to the glomerulus through the efferent arterioles. Okay. So blood is collecting by the interlobular vein, then passes through the arterial vein, and from those continues to be the interlobular vein, which is finally merged into the renal. तो जैसे जैसे ये डिवाइड होंगी बाद में वैसे वैसे ही ये मर्ज होकर रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस इज योर इन जनरल वन फीमेल ब्लड सर्कुलेशन का पिक्चर है कि आपका कैसे कैसे ये कैपिलरीज एंटर होती है और कैसे कैसे ये रीजॉइन करती है. दिस इज अ हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ योर रीनल किडनी, जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ठीक. अब जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स होंगी वो लीड करेंगी किसमें, फ्रॉम बोमन्स कैप्सूल टू लूप्स ऑफ हेनले एंड लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है. ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, ठीक है. देन अब ये क्या करते हैं, इसमें आपका अमीनो एसिड का अब्जॉर्प्शन होगा, प्रोटीन का होगा,
ग्लूकोजा का होगा, लैक्टेट का होगा, यूरिया का होगा। आयन ट्रांसपोर्टेशन बाइकार्बोनेट एंड सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर, इतना आपका रीअब्जॉर्प्शन इस फेज में होगा। ओके, लूप्स ऑफ हेनले में क्या होगा आपका कि एक्सटेंडेड लिंक टू द मेडुला, descending length of the loops of Henle, squamous and permeable of water. So, एंड असेंडिंग लूप जो होता है आपका वो क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है और आयन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। Distal tubule collects the loop of Henle and collecting that and central cuboidal lining lines the distal tubule and transportation of ion absorption and secretion under the hormonal control. Okay, so आपके हार्मोन्स के कंट्रोल के अंडर ये सब कुछ एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, so you can see this diagram जहाँ पे आपका जो है हमने हर एक लेयर को, जैसे हमने पेराइटल लेयर आउटर लेयर को पहले ये दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि फ्लैटेड और स्क्वेमस टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस के इन बिटवीन का अगर हम कोई पार्ट देख रहे हैं तो वहाँ पे आपका विस्ट्रल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सूल, आपको विस्ट्रल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, देन यहाँ पे हमने आपको प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल का अगर कोई पार्ट दिखा रहे हैं तो यू कैन सी कि अपर पार्ट में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई में आपको डाइजेशन में पढ़ा था। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोविलाई की वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है इंटेस्टाइन का ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करना है, ज्यादा एरिया चाहिए ताकि एनालिसिस हो सके, इसीलिए हम यहाँ पे भी आपको माइक्रोविलाई मिलेगा। एंड एट द बॉटम हमारे पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होगा कि यूरिक का कंसेंट्रेशन मान लीजिए आपने कोई पैथोजन को रीअब्सॉर्ब कर लिया तो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसको वहीं से किल कर देगा। ठीक है, हाईली इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है ताकि आपका प्रॉक्सिमल कन्वेक्टिव ट्यूब्यूल से ट्रांसफर कैपिलरीज को इजी हो सके। ओके, देन डिस्टल ट्यूब्यूल्स में भी लमसम सेम एनाटॉमी है, बट आपका क्या होगा डिस्टल ट्यूब्यूल में थोड़ा सा आपका माइक्रोविलाई का प्रोजेक्शन जो है इसमें कम हो जाता है। ओके, माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर इसमें थोड़े कम होंगे बट बॉटम में फोल्ड्स में भी लमसम इक्वली मिलते हैं। ओके, loops of Henle you can see कि thin segment cells होते हैं and collecting duct के cells में माइक्रोविलाई प्रोजेक्शन और कम हो जाएगा और आपका जो लोअर बॉटम में जो हाईली इनफोल्डेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो this is how your upper part is your cortex, lower part is your medulla. Okay, and यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट है। ओके, एंड दिस इज योर डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिश्यू। तो यहाँ पे जैसे आप ग्लोमेरुलस से लिखेंगे तो पहले आपका प्रॉक्सिमल पड़ता है, फिर लूप्स ऑफ हेनले पड़ता है, फिर आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिश्यू और फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज अ जनरल एनाटॉमी और इनमें में आपका यूरिन का फॉर्मेशन होगा। दो तरीके की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, अब आपका जो भी सिक्रेशन होता है वो कैसे होगा, पैसिव डिफ्यूजन होगा यूजुअली। So most of these functions concern the reabsorption and secretion of various solutes or ions such as sodium हो गया, carbohydrate हो गया, ammonia हो गया, ammonic amino acids हो गए। Each segment of nephron is highly specialized function। आपको मैंने उनके एनाटॉमी दिखाई, जहाँ जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जहाँ जितना ज्यादा फंक्शन होगा वहां उतना ज्यादा सरफेस एरिया वहां डिजाइन है सेल। ठीक, reabsorption of glucose, reabsorption of water, reabsorption of salt and reabsorption of यूरिया। जैसा कि बॉडी का जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से, और मैं ये नहीं बता सकती कि हर बॉडी में कितना होगा, बट ऑन एन एवरेज हम एक जनरल एनाटॉमी लेके चलते कि एडल्ट में इतना होना चाहिए एंड चिल्ड्रन में इतना होना चाहिए। बट फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एक्स वाई जेड फैक्टर मेरी बॉडी को अगर किसी दिन कहीं किसी चीज की ज्यादा अमाउंट चाहिए होगा तो वहां से वो किडनी उतना ज्यादा फिल्टर करता है और एक्सक्रीशन उतना कम करता है। ओके, पैसिव डिफ्यूजन in the direction of concentration or electrical gradient transportation कैसे होगा था आपका पैसिव डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, एंड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द ग्रेडियंट जहाँ पे आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, तो ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन यूजिंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो कंसेंट्रेटेड चीज होगी वो ज्यादा इजीली मूव कर पाएगी। ओके, अब यहाँ पे आप यूजुअली आप एक पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। ठीक है, आपका ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स है, नीचे का पार्ट मेडुला। ओके, एंड
whole process is, you can see कि आपका जो partial pressure यहाँ पे अगर सोडियम का 60 to 40 है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। एच कार्बोनेट आयन का अगर 85 है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सोडियम का 25 है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन सी दिस होल प्रोसेस इज डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे 10 है तो वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 to 5 है तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर absorption will take place. Okay, clear? आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम आयन, सोडियम क्लोराइड है, H2O का, वाटर का, ठीक है। फिर एडिनिन, एस्पार्टिक, डाइयूरेटिक, सबका रीअब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का हो रहा है, एवरीथिंग मैग्नीशियम, कैल्शियम, सबका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी की एज पर रिक्वायरमेंट, ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन एक्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, ये सारा जो है आपका ऑस्मोटिक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में सब कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। लूज का फैलने में डायूरेटिक्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा बेसिकली, ओके। और जब हम यहाँ पे आते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो प्रोक्सिमल में थायराइड की वर्क करते हैं, ठीक है। फिर जब हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएंगे तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपका जो है एल्डोस्टेरॉन बेसिकली ज्यादा डिस्टल पार्ट में वर्क करता है, ठीक है, ऑस्मोटिक के साथ साथ। तो ये हार्मोनल है, ठीक है। पैराथायरॉइड हार्मोन भी फंक्शन करेगा आपका डिस्टल में, ठीक है। तो यू कैन सी कि ऑस्मोलारिटी प्रेशर के साथ साथ व्हाट हैपन कि सर्टेन हार्मोन्स विल आल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल, ओके। और एडीएच जो आपका फंक्शन करेगा, एडीएच आपका बेसिकली कलेक्टिंग शेड्यूल करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडीएच विल फंक्शन इन योर कलेक्टिंग शेड्यूल। So, there is an intercalated cell with mitochondria and involves the acid-base balance and a principal cell, which interacts with antidiuretic hormone, जो कि ADH होता है. It participates in electrolyte and fluid balance to reabsorption and excretion. The collecting duct system participates in the regulation of other electrolytes, including chlorine, potassium, hydrogen, and bicarbonate. तो यू कैन सी कि आपका जो है अदर आयन्स भी आपका बेसिकली एब्जॉर्ब होता है। तो रीनल फंक्शन में क्या होगा कि हीमोस्टैटिक फंक्शन होता है, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेगा, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। नॉर्मल डायलिसिस में क्या होगा कि आपका 1.5 to 2 लीटर पर डे। और पॉलीयूरिया मतलब कि आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, तो जब यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा तो डायूरिसिस होगा, तो 2 लीटर से ज्यादा पर डे। और ऑलिगो यूरिया में क्या था 0.5 लीटर पर डे, और एनी यूरिया में 0.1 लीटर पर डे, ठीक है, जहाँ पे नो यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इंक्लूड नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनिया फ्रॉम प्रोटीन कैटाबोलिज्म, यूरिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड मेटाबोलिज्म। तो ये आपका एक्सक्रीशन होता है बॉडी से बेसिकली। तो यू कैन सी कि आपका एक्सक्रीशन कैसे कैसे चल रहा है बेसिकली, एंड आपका कैसे हार्मोन इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं इस होल प्रोसेस में। So the hormone secretion produces the hormone including calcitriol, renin and erythropoietin. Erythropoietin का फंक्शन क्या होगा कि आपके रेड ब्लड सेल जो भी उनका एब्जॉर्प्शन करेगा यहाँ पे, ठीक है। रेनिन जो होता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट करेगा और सारा प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम जो होगा वो आपका कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए बेसिकली फंक्शन करता है, ठीक है। तो फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आपका एडीएच है उसको मेंटेन करता है बेसिकली। एल्डोस्टेरॉन जो मैंने आपको पहले भी बताया, पैराथायरॉइड हार्मोन के बारे में भी मैंने बताया, इपिनेफ्रिन और नेट्यूरेटिक पेप्टाइड जो बेसिकली एएनपी एंड बीएनपी वर्क करते हैं, ओके। तो एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड रिलीजेस द सेक्रेशन ऑफ पोटेशियम इन द किडनी, ओके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, वेसोप्रेसिंग करता है, वेसल्स को प्रेस करेगा। तो वेसल्स को जब प्रेस करेंगे तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन शेड्यूल
बाय इफेक्टिव टिश्यू परमेबिलिटी, जब आप प्रेस करोगे किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल मैं आप कोई भी पानी की पाइप को ले लो, ठीक है, जब पानी की पाइप को आप एट द एंड पॉइंट से प्रेस करती है, इन बिटवीन पॉइंट से प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि प्रेशर इजीली रिलीज होता है, पानी तेजी से मूव करता है, ठीक है। तो जब प्रेशर वहां ज्यादा होता है तो व्हाट हैपन कि आपका परमेबिलिटी मेम्ब्रेन में ज्यादा बढ़ जाती है और वो वाटर जो है एब्सॉर्ब हो जाएगी। It play a key role in hemostasis and regulation of water, glucose and salt in the blood. Okay. अब ये सारा जो मैंने आपको बताया, ये सारा फंक्शनैलिटी हो कैसे रहा, तो आपका ऑस्मोलारिटी रेगुलेशन से, ठीक है। ऑस्मोलर जहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो तो वहां पे वो जो है वर्क करता है। तो एनी सिग्निफिकेंट rise or drop in the plasma osmolarity is detected by the hypothalamus, जो कि आपको ब्रेन में प्रेजेंट होता है, एंड secretes the ADS। आपको जैसी बॉडी को लगेगा कि नहीं यार यहाँ तो ज्यादा ड्रॉप हो गया, तो वहां पे क्या होगा, हाइपोथैलेमस एडीएस को रिलीज करेगा। एडीएस जो है आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है एज रिजल्ट फ्रॉम द वाटर रिएब्सॉर्प्शन बाय किडनी। तो किडनी क्या करेगी, आपका वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगी। ओके। एसिडोबेस hemostasis में क्या होगा कि किडनी एंड लंग्स मेंटेन द pH around the relatively stable value, and kidney contributes to acid base hemostasis by regulating carbonate। तो आपका जो भी कार्बोनेट का, जैसे अगर आपका पीएच इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है बाइकार्बोनेट का। अगर पीएच डिक्रीज होगा तो सिक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर एच प्लस आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है तो आपका बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन हो जाएगा। दिस इज डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, आपका प्रेशर पीएच जो होता है आपका पीएच वैल्यू का जो कंसंट्रेशन होगा उसके हिसाब से जो है ये बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है किडनी में। ओके। यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि H2CO3 है, यूजुअली ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में होगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर टिब्यूल्स के अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, आपका जो है प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज में HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा ताकि वो वापस से H2CO3 फॉर्मेशन करके, ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेट बना करके और H प्लस और CO3 माइनस में ब्रेक डाउन। तो यू कैन सी कि जैसे आपका ये सारा किस में डिपेंड कर रहा था कि आपका पीएच लेवल पे और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन पे। ओके, क्लियर और नॉट? मैंने आपको वन मोर थिंग आप डिस्कस ड्यूरिंग कि आपका ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, तो वो कैसे करता है, आपका रैश सिस्टम आई डिस्कस आई सेड अ लॉट। तो व्हाट इज योर रैश? तो रैश इज योर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दिस इज योर रैश सिस्टम। अब क्या होता है रैश सिस्टम में, वी कैन सी। ओके, आपका बेसिकली जो है लेट्स स्टार्ट विद की आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन जस्टा मेगुलरी apparatus से होता है, ठीक है, और चेंजेस इन द डिलीवरी ऑफ सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा एट द डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑल्टर्स द किडनी सिक्रेशन। तो आपका जो है रेनिन एंजाइम्स का सिक्रीशन होने लगा। अब रेनिन एंजाइम्स का जब सिक्रीशन होगा, ठीक है, तो आपका किडनी यू कैन सी इन दिस कि रेनिन का क्या होगा कि डिक्रीज इनटू द परफ्यूजन। आपका जैसा मेडुलरी में रीनल परफ्यूजन डिक्रीज हो तो आपका डिक्रीज जब होगा तो क्या होगा, आपका रेनिन आयन का सिक्रेशन होगा। रेनिन आयन का सिक्रेशन होगा तो लिवर से क्या होगा कि एंजियोटेंसिन रिलीज होगा। एंजियोटेंसिन और रेनिन मिलके क्या बनाएंगे, एंजियोटेंसिन 1। फिर आपका क्या होगा, पल्मोनरी से सिक्रेशन होगा और वो इसी का सिक्रेशन करेगा। तो रेनिन एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में, और जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा ये, तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा ये, ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोरीन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आपका पोटेशियम आयन करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा ताकि रिटेंशन मेंटेन रहे। यू कैन सी। ओके, ये आपका ये प्रोसेस किडनी में शुरू हो जाएगा, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन किडनी करेगी एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है वहां से, ठीक है।
और फिर एंजियोटेंसिन का फंक्शन क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करने से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इनसाइड द आर्टरी। ओके, एंड फिर वो क्या करेगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो एडीएच को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो एडीएच फिर क्या करता है, आपका हाइड्रोजन आयन का जो है वो एब्जॉर्प्शन करेगा कलेक्टिंग लेग से, ताकि इस प्रोसेस को मेंटेन किया जा सके। तो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ योर एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में हेल्प करता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ओके, तो किडनी अगर अफेक्टेड होगी तो ब्लड प्रेशर में भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट पड़ता है। एंजियोटेंसिन टू अगर रिलीज होगा बॉडी में, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो जब वेसल्स को कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो भी ब्लड है वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा, और बीपी में हम ब्लड प्रेशर को भी मेजर करते हैं। ठीक, क्लियर? तो इस वजह से आपका जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इन जनरल। क्लियर है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो मैम। This is basically we studied that कि amino acid metabolism हो रहा है, and तो आप basically कैसे होता है ये सारा metabolism, I'm going to explain. That is the second part of this lecture. Okay? तो आपका बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आपका जो भी है नाइट्रोजन कंपाउंड है, सच एज अमीनो एसिड, यूरिया, एसिडिक एसिड, वो ब्रेक डाउन होता है बाय अमीनो एसिड। अब वो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो बॉडी प्रोटीन है, जो आप 250 और 300 ग्राम पर डे ले रहे हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब उसमें क्या होगा कि बॉडी प्रोटीन फॉर्म में डिग्रेडेशन का, तो डिग्रेडेशन करने पे वो क्या होगा, डाइजेशन के प्रोसेस में वो क्या होता है कि कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में। वो अमीनो एसिड फर्दर जो है आपका कन्वर्जन कार्बन स्केलेटन प्रोसेस में जाता है, और जो फर्दर ब्रेक डाउन होगा अमो अमीनो NH3 में एंड यूरिया में। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो ये आपका जो है ग्लाइकोलाइसिस वेब साइकिल में सर्टेन पार्ट जाएगा, और वहां से ये ब्रेक डाउन होगा, और ये क्या बनाएगा फर्दर एट द एंड, आपका ग्लूकोज बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, एंड कीटोन बॉडीज बनाएगा। ये सारा आपका ग्लाइकोलाइसिस वेब साइकिल में यूजुअली ये डिराइव होंगे। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिक प्यूरिन्स हो गया, प्रोफाइरिन्स हो गया, ठीक है, पिरामिडिन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन एंड अमीनो शुगर, ये सारा आपका जो है वो नॉन प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जो आप बॉडी अमीनो एसिड को साइड में अलग एक अदर प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट करेगा। तो दिस इज होल प्रोसेस ऑफ योर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, और यही आपको बॉडी में जो ये नॉन प्रोटीन डेरिवेटिव्स और जो ग्लूकोज डेरिवेटिव है, और यूरिया है या NH3 है, अमीनो एसिड, ये सारा बॉडी जो है वो उनको यूरिन के थ्रू जो है निकालता है। ठीक है, तो वेट कंसेंट्रेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ को हम कैसे इनहिबिट करते हैं, तो ये अगर बहुत ज्यादा बॉडी में बिल्डअप हो जाएंगे तो ये पॉइजनस हो जाता है। तो इन ऑर्डर की बॉडी में कोई टॉक्सिक कंडीशन ना हो, इसीलिए बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, जो इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है बाय यूरिन और बाय स्टूल फॉर्मेशन। ओके, तो वही हमने यूरिन का फॉर्मेशन अभी रफली वी हैव की। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक आई एम ट्राई टू शो यू विद प्रॉपर वीडियो, ओके, ताकि आपको पता चले कि किस लूप में कैसे वो कंसेंट्रेशन वेरिएशन से यूरिन फॉर्मेशन होता है। ओके,
तो बेसिकली आपका नाइट्रोजन वेस्ट में क्या होगा, अमोनियम आयन बनते हैं जो NH4 होता है, हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यूजुअली एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं इसको कन्वर्ट करके जो है एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करके लेस टॉक्सिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक, ओके। तो many people confuse the excretion with elimination. Elimination means आप कुछ भी eliminate out कर दो, but excretion is something जो कि हम excrete कर रहे हैं by knowing कि हमें ये elimination, आप vomit out कर रहे हैं वो भी elimination, आप stool से या potty से कोई चीज remove करें वो भी elimination, आप urine से ही remove करें वो भी elimination, but excretion है कि हमें पता है कि हमें कितना amount क्या चीज का excrete करना है, वो हमारे विल पावर के थ्रू होता है, ठीक है। ओके, तो एलिमिनेशन इज डेफिकेशन और रिमूवल ऑफ डाइजेस्टिव फैट अनअब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इन फॉर्म ऑफ फीसेस, आपका वॉमिटिंग हो गया, किसी भी फॉर्म में आप एलिमिनेट कर सकते हो, ओके। Since these materials are never entered into the body cells and they are not metabolic waste, वो metabolic waste नहीं होता, metabolic waste जो होता है जो हम excrete out कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या होता है कि जैसे मैं आपको बताया कि अमोनिया साइकिल में है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुआ, क्रेब्स साइकिल चली, ग्लाइकोलिसिस चला, ठीक है, फिर उसका जो है अलग से जो है नॉन प्रोटीन डेरिवेटिव को डिवाइड किया हमने और फिर हमने उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। तो दिस इज की वो पूरा एक प्रोसेस एक साइकिल में रन हो कि जो एंड प्रोडक्ट या इन बिटवीन प्रोडक्ट है जो बॉडी को किसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं होता है, उसको जब हम रिमूव करते हैं तो वो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस कन्वर्जन में आता है, ठीक है, क्लियर। तो आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस लिवर भी करता है, ठीक है, जैसे कि हार्मफुल सब्सटेंस होता है, लिवर जो होता है हमारा ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, जहाँ पे हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में होता है, हीम इज योर आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन इज योर प्रोटीन पार्ट, ठीक है। फिर आप कोई भी ड्रग जो हम एक्सटर्नली आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताऊंगी कि फर्स्ट साइड ऑफ दैट ड्रग एक्टिविटी इज योर लिवर, इसीलिए कहते हैं कि लिवर स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हम ड्रग खाते हैं, जो लोग ज्यादा मेडिसिन खाते हैं उनका लिवर इफेक्टेड होता है, वाई इट इज बिकॉज क्योंकि सारे मेडिसिन का फर्स्ट साइट ऑफ एक्शन जो है वो आपका लिवर होता है, वहीं पे वो फिल्टर आउट करता है कि बॉडी के लिए कितनी चीज कितना इंपॉर्टेंट है और रिमेनिंग वो एक्सक्रीट कर देता है, ठीक है। तो लिवर में आपका यूजुअली क्या होता है कि आपको कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी हार्मोन है, कोई भी बैक्टीरिया है, वो क्या कन्वर्ट हो रहा है कि लेस टॉक्सिक फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है, ठीक है, एंड प्यूरिफाई करता है लिवर और डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड और अदर सब्सटेंसेस को, ठीक है। द इनएक्टिव सब्सटेंसेस फॉर्म इन द लिवर आर रिटर्न इन द ब्लड स्ट्रीम, अब जो इनएक्टिव सब्सटेंस है वो लिवर से क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा और फाइनली किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, तो ये आपका किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, ओके। So this is the basic certain differences I have explained. Okay. अब ये आपका फेज 1 और फेज 2 में बेसिकली बायो ट्रांसफॉर्मेशन पाथवेज होते हैं जो लिवर में चलता है आपका टॉक्सिन्स का और वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, फॉर एग्जांपल जैसे फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है जो फैट में सॉल्युबल, लिवर में जो बाइल जूस होता है वो किसका एमल्सिफिकेशन करता है, फैट का एमल्सिफिकेशन। तो जो फैट सॉल्युबल है जैसे कि मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट जो भी है और क्या कहते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फूड एडिटिव और ड्रग्स, अल्कोहल सब कहाँ जाता है, आपका लिवर पे जाता है, ठीक है। लिवर फेज 1 में इसको एनालाइज करता है कि टॉक्सिन क्या है, यूटिलाइज क्या हो सकता है, फिर जो टॉक्सिन्स हैं उनको वो फेज 2 में भेजता है वेस्ट प्रोडक्ट में और वो एलिमिनेट करता है, कैसे एलिमिनेट करेगा, या तो किडनी के थ्रू एलिमिनेट करेगा यूरिन में, या फिर बाइल के थ्रू एलिमिनेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फूड, ओके। तो आप जैसे जैसे आप टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट किडनी अगर मैं बात करूँ तो किडनी में वर्टिब्रेट किडनी में क्या होगा कि नेफ्रॉई होगा, नेफ्रॉई बिल्ड अकॉर्डिंग टू द बेसिक पैटर्न कंसिस्टेंस ऑफ ग्लोमेरुलाई होता है, ट्यूब्यूल्स होता है एंड लॉन्गिट्यूड आपका नेफ्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड डक्ट, ओके। तो दीज आर द बेसिक दिस इज एन स्ट्रक्चर कि आपका कैसे आपका कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है और एक कॉर्टेक्स के अंदर ही आपका कैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अरेंज होता है, ओके।
तो आपका जो कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर होगा, आपने देखा होगा कि ऐसे होता है स्टार शेप, जो मैंने आपको बताया था मेड्यूला का। उस मेड्यूला के अंदर ही आपका जो है आउटर पार्ट में आपका जो है सर्टेन पार्ट ऑफ दिस इसका पड़ेगा नेफ्रॉन का, एंड सर्टेन पार्ट आपका मेड्यूला में पड़ता है। तो जो डार्क पीच पिंक और डार्क बीच कलर जो है वो आपका मेड्यूला को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अपर पार्ट है लाइट पीच में, वो कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। okay? तो ऐसे आपका नेफ्रॉन लाई करता है दोनों पार्ट। ठीक। एंड ये फर्दर आपका जो है फर्दर आपका कलेक्शन करता है और रीअब्सॉर्प्शन करता है एंड एक्सक्रीशन करता है। ओके। So now we are left with formation of urine that we are going to study in detail in next. Okay. Urine formation हमारा इसमें basic anatomy we have covered. Only 10 minutes lecture is remaining. That is the urine formation. So I'm ending this lecture now. Okay. Just go through the PPT and any doubts we will get connected in next class. Okay.